Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. Of legal framework, the governance and the regulation. I am your moderator and the host for today's session, Muneeb Imran, with having an expertise towards cybersecurity strategy, governance and risk. Today we have with us our distinguished panel primarily from the financial sector and telco sector in Pakistan. Starting off, we have Mr. Jawad Khalid Mirza, who is the Chief Information Security Officer in Askari Bank in Pakistan. Then we have Mr. Ali Imran. He is the Chief Information Security Officer in Bank Islami. From telecommunication sector, we have Mr. Tausif Aslam, who is the Business Security Officer at Telenor Pakistan and Emerging Asia. So I welcome you all, gentlemen, to participate with us in our today's session. First of all, the idea behind conducting this session, was to carve out the new ideas and to also understand the pain points that Pakistan cybersecurity at large might be facing. So the idea is that with these experts on board, we need to hear out from them what exactly is the state of cybersecurity in Pakistan, again, in terms of legal framework, in terms of the governance, how cybersecurity is governed in the private sector primarily, and also in terms of the state level regulation, what are the missing areas, what exactly needs to be done. These are the areas that we are going to discuss. So to start off, I'll begin with my first area of discussion, or my first question, and I would like to start with Mr. Jawad Khalid. That how has the way of doing business transformed in past decade or so according to modern era in Pakistan, especially in the private sector and also in the government sector? If you could, brief us on this one, and then we'll take the same question to Mr. Ali Imran and Mr. Tausif as well. Thank you, Muneeb, and thank you, GISP, for inviting us to represent financial industry aspect for digital transformation. 10 years is far away, but the things in COVID has really paddled up digital transformation in at a very rapid pace. I was studying an article from World Economic Forum that 20-30% rise they have seen in digital transformation collectively for the whole world. But the thing is, for the Pakistanis concerned, B2B market and B2C market and government relations are paddling up heavily on digital transformation, whether it could be private sector, whether it could be a government sector, whether it could be any other sector which is handling also kind of transactions. I believe जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के जो साल हमें जो लगने थे, कोविड ने पैडल अप कर दिए तेजी से. I have this perspective on this. Okay. Mr. Ali Imran, if you could please share your opinion on this one. किस तरह से आप देखते हैं सोसाइटी के अंदर, और ये खास तौर पे अगेन 10 साल का पीरियड इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि दुनिया में हमने तब्दीली largely इस 10 सालों में लिया, and I partly agree with what Mr. Jawad said कि इन 10 साल तो बहुत लंबा अरसा है. पिछले 1 साल के अंदर बेसिकली ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं. तो प्लीज आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्या है. चलिए, आई थिंक आपका माइक जो है वो म्यूट हुआ है. आई एम सॉरी, असल में मुझे याद नहीं रहा कि माइक म्यूट पे था. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मिशन में तो लास्ट 5 to 10 years अगर आप कंसिडर करें तो इट्स वेरी फास्ट. जो e-commerce है, the use of e-commerce was not very common. We can see that the new e-commerce websites are emerging day by day, and now people are shopping online. They've started shopping online. Before, I mean, there was not
it was not a good trend like we used to see in the Western countries कि जी वहाँ पे हर चीज़ आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, but trend change हो रहा है और still पाकिस्तान में कुछ ऑनलाइन चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, but you can get good reviews और उस पे तो ई कॉमर्स जो है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स किसी ने इवन लैपटॉप्स ऑर्डर करने तो सब कुछ पाकिस्तान में पहले ऐसा नहीं होता। मोबाइल ऐप्स आप देख सकते हैं, करीम और इस तरह की जो न्यू एप्स आई हैं मार्केट के अंदर, फूड पांडा, लोग फूड ऑर्डर कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है और ये सब कुछ जो है दिस ऑल बिकॉज ऑफ that the availability of 3G and 4G internet connectivity to masses in Pakistan and especially जो स्मार्टफोन का एक पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन आया है कि हर शख्स के पास जो है वो एक उसके पास स्मार्ट डिवाइस है, ठीक है, वो उसको कनेक्ट करके वो कर सकता है। तो थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। और डिजिटल बैंकिंग जो है उसके अंदर पिछले कुछ अरसे में बहुत तेज़ी से चेंज आया पाकिस्तान के अंदर और जो ADC चैनल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करना शुरू हो गए हैं। इजी पैसा आप देख लें और जायज़ कैश देख लें, ठीक है, डोमेस्टिक रेमिटेंसेस के प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं और जो मैस अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है वो इसको यूज़ करना स्टार्ट हो। तो आपने किसी को भी पैसे भेजने हैं, आज हर किसी अनपढ़ बंदे को भी पता है कि इजी पैसा क्या है और हाउ टू गेट द मनी, जो है ना, अगर किसी ने सेंड किया। गवर्नमेंट में देख लें तो गवर्नमेंट में बहुत चेंज है। आप अपने पासपोर्ट्स जो हैं जिनको रिन्यू करने के लिए आपको महीनों लग जाते थे, आप नाउ यू कैन गेट इट रिन्यूड ऑनलाइन, ठीक है, और कुछ दिनों में आपके घर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए डिलीवर हो जाता है। ऐसी बहुत सी जगह थी यहाँ पे जैसे पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड था, नाइकअप था, ये आप रिन्यू करने के लिए आपको यूज टेक 6 months और मोर देन दैट। अभी जो है आप ऑनलाइन उसको ऑर्डर करते हैं, विद इन 20 days और 14 days यू कैन गेट इट रिन्यूड, ठीक है, और आपको आपके डोर स्टेप पे मिल जाता है। तो गवर्नमेंट में इसी तरह से रेवेन्यू के जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, इसी तरह से ये जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह का जो डिपार्टमेंट है, सिटीजन रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के सिस्टम्स आ रहे हैं और बहुत कुछ चेंज हो रहा है। और जो गवर्नमेंट में एक्सपेक्टेड नहीं था, गवर्नमेंट में जो चेंज होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो बहुत दुनिया भर में बहुत लेट होती है, बट इट्स चेंजिंग और इसमें डेफिनेटली लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि आईटी जो है वो हमारे प्रोसेसेस को एफिशिएंट कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा और जो है ना लोगों की आउटरीच जो है वो उस तक इजीली होगी, आपकी सर्विसेज तक आप अपनी इजीली इंफॉर्मेशन को डिसैमिनेट कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत तेजी से चेंज आ रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर शख्स को पता है। Tausif Saab, if you could, jump in and share your perspective on this one from the telecommunication side, what has been your observation about this particular subject? Thanks, Muneeb, and Assalamu alaikum everyone. So, Muneeb, my perspective is, I think it's almost aligned with what Jawad and Ali said. If we keep in mind the last 10 years, so this has really increased with the invention of the smartphone and the penetration of the smartphone in the market, because that has really facilitated that. But in the last 1.5 years, this has been amplified, I think, by the COVID, because it has changed our assumptions and perspectives around many things. Previously, I don't think that we even thought of having such panel discussion online. We were always thinking to go somewhere in Marriott, spend a lot of money, all of us travel, 50, 60, 70 people, 100 people traveling, spending a lot of money on fuel and all those things, and then sponsorships. So it was really difficult. But now I think it's so simple. We are sitting at our homes and we are doing this wonderful session. So I think these two things have really changed in the last 10 years. These are two main things. And yes, it has driven a lot of things. So one example that Ali given, so I think that was very good, and that was Easy Paisa, so mobile wallet. So we never thought of banking on our fingertips. So it was so formal. We have to go to banks. We have to have the checkbooks. Our signatures should be matching, and then there are so much formalities. Even nowadays in the banks, there are so much formalities.
And now I think so many banks, so maybe I can at least say Standard Chartered Bank. So they have been working in the last 1-2 years to reduce their branches. So there may be other banks doing that because they see that a lot of it can be done online. So this has changed. And then there are many other things. So we have now touch points, digital touch points for the government sector. You go to tax. So I think I registered my tax around 7-8 years ago without visiting too many offices. This was never possible. So in Telenor, we have another product that is digital birth registration. So you don't need to go to Union Council and all those things. So you can just have it on your tab or mobile. So things have really changed. And then you bring in applications like Baikia, Cream, similarly Telenor has its own app, My Telenor app. So they facilitate a lot of things that you have to go to sales and service center and franchises. You don't need to go there now. So all of it you can do on your app, maybe just 1 or 2 tasks where you have to have a physical SIM delivery. So there you are dependent to go to such franchises, or maybe you can get that with the app via postal order. So the physical interaction has been reduced a lot. So I think a lot of changes, but this is not end of game. I know a couple of things that are coming up, and I think that will be even more exciting. So in coming few years, maybe not 10 years, in just 1-2 years, so we will have a lot more reliance on these digital applications, and they will change many fundamental beliefs that we have to have in last 10-15 years. So that's my view on this. And perfect. It's good that we are hearing the perspectives. Primarily, the perspectives are in alignment. So we seem to have this consensus that the digital transformation has really taken place in the past 10 years in Pakistan, and it has been amplified in the past 1.5 years, by significant margins. But now the second question, which we want to discuss, and again, that's the premise behind having this discussion, is about discussing the cyber landscape in Pakistan. So since the digital transformation has taken place in Pakistan, how important is cybersecurity concerned for the businesses or by the businesses for the overall growth and stability of their business? And how is cybersecurity governance, treated by the senior folks at the board level, at the senior executive levels? And is it dictated by some regulatory compulsions, or coming either from the government sector or from the contractual obligations that may be incumbent upon the private sector at large? I would like to throw this question to Mr. Jawad. If you could share your thoughts on this one, please. जी बिल्कुल, एक बड़ा अच्छा कमेंट भी मैं पढ़ रहा था. खैर, I have to be more conversant in Urdu as well. उसमें ये कि with the change, मैंने तो पूरे cyber security को witness किया है right from 2003-4, बल्कि rather 2006 से banking industry के अंदर till now. बहुत ज़्यादा जैसे जैसे हम चलते गए और जिस तरह साइबर अटैक्स को हमने विटनेस किया लोकल भी और ग्लोबली भी, उस तरह से स्टेट बैंक जो रेगुलेटर है उसने भी काफी हद तक अपनी रेगुलेशंस के अंदर और चीजों के अंदर चीजों को पैडल अप रखा विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी. दे वी have and suddenly regulator has realized the importance of cyber security while कोई भी जो चीज है आप इसको नया बज़वर्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दे लें या जो भी कंप्यूटराइजेशन हेवीली कंप्यूटराइजेशन का नाम दे लें, साइबर सिक्योरिटी के बगैर आप उस फैब्रिक को बिल्ड किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बिकॉज आईटी के जो लोग हैं या डेवलपर्स हैं उनका इक्विपमेंट दे आर नॉट डिजाइंड फॉर द सिक्योरिटी फ्रॉम द बेस साइड, राइट. उनको करने के लिए उन सारी चीजों को फैब्रिक के अंदर एजाइल अप्रोच लाने के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी की एक इम्पोर्टेंस रेगुलेटर भी डिफाइन करता है और हम भी कोशिश करते हैं कि वो चीज होनी चाहिए. अब आप रिस्क नहीं ले सकते. नाउ वी आर हैविंग अ रिस्क बेस्ड डिसीजंस. हमारी कोई भी जो चीज है जिस तरह से हमने विटनेस किए हैं
ब्रीचेस को, और जिस तरह से मैं खुद विटनेस करता हूँ कि अभी जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट है, यानी रादर बोर्ड के लेवल के लोगों में भी अवेयरनेस है अबाउट दिस थिंग, ये एक अच्छी चीज है कि उस लेवल पे अब चीजें जो हैं अब फॉर्मली लोग अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और चीजों को रियलाइज भी कर, ऑल्दो इतनी फुल टाइम रियलाइजेशन नहीं है, बट द थिंग इज बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, फ्रॉम द रेगुलेटर साइड इतनी पुश है कि यू हैव टू, अभी खैर टेल्को साइड पे भी तोसीफ बता देंगे, टेल्को साइड पे भी अब काफी पुश आ रही है विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ अ बिजनेस साइड, इट्स अ बिजनेस इशू। टेक्निकल तो है ही है समवॉट लाइक, अब जो हमारा रोल है बीइंग अ सीईओ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, हमें अपना एक डिसीजन देना होता है जो कि हम तमाम बिजनेस की जब तक हमें नो नहीं होगी हम उस चीज को नहीं देख सकते विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट थिंग्स। हम एक डिसीजन मैनेजमेंट के सामने रखना होता है, दैट्स अ रिस्क बेस्ड डिसीजन। वो जब तक आपको टेक्निकल इक्विपमेंट नहीं होगा और जब तक आपको बिजनेस इक्विपमेंट नहीं होगी, कांट डिलीवर दैट। तो आई थिंक हमारे ऊपर इस रोल के ऊपर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई। अच्छा, इसी कोई आगे अगर थोड़ा सा मैं जो मैं चाहता हूँ अंडरस्टैंड करना फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल सेक्टर से भी और टेल्को सेक्टर से भी, कि अभी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है बाहर बैठे हुए कि कुछ साइबर सिक्योरिटी की जो क्लॉजेस हैं वो मे बी रेगुलेटरी जो भी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं कुछ क्लॉजेस साइबर सिक्योरिटी को एड्रेस करते हुए, लेकिन एक ओवर आर्चिंग साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, जो स्टेट बैंक या पीटीए वगैरह की तरफ से कोई एक ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क अभी नहीं एग्जिस्ट करता है। तो हम वहां पर अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या काम हो रहा है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मुनीब। देखें, अभी जो है ना फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव एंटरप्राइज गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप उसको देखें, कुछ चीजें ना इवॉल्व होती हैं। बीइंग मैं खुद सऊदी में रहा हूँ कुछ अर्सा और मैंने फर्स्ट वर्ल्ड भी को देखा है, वहाँ चीजें बहुत पहले से ग्रेजुएट हैं, हुई हैं। वो जहाँ तक पहुंचे वो बहुत आगे भी थे हमसे, और हम जो चीजें हैं कई चीजों में हम बहुत रिएक्टिव हैं। पाकिस्तान ने चीजें जो की हैं हमने बहुत ज्यादा, जैसे बांग्लादेश का स्विफ्ट का इंसिडेंट होता है तो उसके बाद रियलाइज होता है ओ यार ये चीजें भी हैं, जो किताबी बातें ये बोलती भी हैं, मतलब ये चीजें होती हैं दुनिया के अंदर। और अगर आज कोई है तो हम भी हो सकते हैं कल कला को। तो मतलब हमने चीजों को पाकिस्तान के अंदर वी आर मच रिएक्टिव, मतलब हमारी कुछ अप्रोच रिएक्टिव है, हम प्रोएक्टिव पे नहीं, हमारी नेशन का एक बिल्ट वो चीज है। बट नेवरदलेस अभी जो फ्रेमवर्क आया 2017 के अंदर उसने कई चीजों को एड्रेस किया। अभी हमने वही फ्रेमवर्क को कोशिश की है रिवाइज करने की इन लाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जब वो आ जाएगा तो आपको खैर आइडिया हो जाएगा कि वो हमने क्या चेंजेस किए हैं उसके अंदर ज्यादा। क्योंकि देखिए हमने मैं आपको मुनीब थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ कि हमारे मोर देन 40 बैंक्स हैं जिसके अंदर फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी हैं, छोटे बैंक्स भी हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बड़े बैंक्स भी हैं, दरमियाने बैंक्स भी हैं। हमने कोशिश ये की है, ये करते हैं कि हम तकरीबन सारी बैंकिंग इंडस्ट्री को साथ लेके चलें, क्योंकि कुछ लोग डेडिकेटेड सीआईओ सीसोज नहीं हायर कर पाते बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेशंस, उनका फाइनेंशियल चंक भी इतना बड़ा नहीं होता, या रादर वो इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं। मतलब हमने कुछ कोशिश ये करते हैं कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल करें, रादर वो तमाम बैंकिंग इंडस्ट्री को हम वो ड्रेस कर लें, रादर फिर वो बाकी बैंक एक्सेप्शंस ले रहे होते हैं, वो सारी चीजें स्टेट बैंक के लिए भी मसला हो जाता है। तो अभी जो नया फ्रेमवर्क आने वाला है विद इन दिस मंथ, उसके अंदर काफी चीजें हमने डिफाइन की हैं जो कि इंडस्ट्री ने ही फीडबैक दिया था, और उसको हमने एज अ साइबर सिक्योरिटी फोरम एट पीबीए लेवल हमने उसको दोबारा से देखा, और हमने भी सेंड टू सेंट्रल बैंक की अप्रूवल्स हो गई हैं। फाइनली इट गोना बी पब्लिश सून। आई सी, इंटरेस्टिंग। अच्छा,
वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक चीज जो समझ में आती है वो, और एंड आई गो टू मिस्टर अली इमरान कि वो भी अपना इसके ऊपर पर्सपेक्टिव शेयर करें कि काम हो रहा है। अच्छा, फ्रेमवर्क का स्पेसिफिकली क्या नाम, अगर आप जवाद साहब हमारे साथ, हमारे ऑडियंसेस के साथ जो है वो शेयर कर सकें, हम कुछ सवालात भी देख ये रहे हैं कि है स्टेट बैंक का है इंटरप्राइज गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये ATGRMF कहते हैं इसको शॉर्टली में। ओके ओके इट वाज पब्लिश इन 2017। अगर आप गूगल करेंगे स्टेट बैंक पे इंटरप्राइज गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2017, वो पूरी की पूरी आपके पास कॉपी आ जाएगी उसकी। इट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट। ओके। अब मैं जानना चाहूँगा अली इमरान साहब के पास। अली इमरान साहब, अगर आप इस चीज़ को, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है शेयर कर सकें हमारे साथ, आप कैसे देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की रेलेवेंस बिजनेस के साथ? अगेन, जैसे आईटी ने एक टाइम तक एक स्ट्रगल किया कि उसको एक फंडामेंटल एलिमेंट जो है बिजनेस ग्रोथ के साथ नहीं अलाइन किया जाता था, उसको समझा जाता था कि एज सम काइंड ऑफ, क्या कहना चाहिए, एक लग्जरी के तौर पे। और अभी भी काफी हद तक दुनिया में, ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये सिर्फ दुनियावी लिहाज से कभी दुनिया में कहीं ना कहीं पर ये अभी भी साइबर सिक्योरिटी को एज एन एड ऑन ट्रीट किया जाता है। तो आप कैसे देख रहे हैं, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस मामले में? कैसे आपने देखा है बिजनेस, कैसे स्पेशली अगेन फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर कंसिडर करते हैं साइबर सिक्योरिटी को? आप अपने ओपिनियंस प्लीज शेयर करें। जी सॉरी मनीप, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये बैंकिंग पॉलिसी इन बैंकिंग डिपार्टमेंट पॉलिसी इन रेगुलेशन BPDR सर्कुलर नंबर 5 है, DTGRM जिसे कहते हैं, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो इसको ये साइबर सिक्योरिटी को भी कवर करता है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कवर करता है। और अभी इसका नया वर्जन, जैसे जवाद साहब ने बताया कि इट्स soon to be published, इसके ऊपर इंडस्ट्री जो है वो कमेंट्स ले लिए गए थे और अभी इसका नया वर्जन पब्लिश हो रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर एक लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेगुलेटेड है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा कि कंपल्शन जो है, रेगुलेशन की कंपल्शन की वजह से हम लोग इसकी तरफ आ रहे हैं या वैसी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो पूरी दुनिया में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में कभी भी साइबर सिक्योरिटी को खुद से कोई लेके नहीं चलता। जब तक रेगुलेशन नहीं आई ना, तो हर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ना होता ये है कि आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, ठीक है। एक एक्सपीरियंस होता है जो आप खुद करते हैं और एक जो लोगों ने किए होते हैं हम उनसे सीखते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह से ही है कि वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखें, ठीक है। तो हर कोई खुद एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो जो रेगुलेशंस है ना, वो आपको कहते हैं कि नहीं भाई, आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं करना, आपने ये जो ड्यू केयर और ड्यू डिलिजेंस की मेजर्स जो है ना, आपने लेनी है पहले से, ठीक है। क्योंकि आप जिन सेक्टर्स को सर्व कर रहे हैं उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं। तो जो रेगुलेशंस हैं वो बेसिकली वो कंपेल करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि यार आप कोई सीसो रोल का बंदा रखो, कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जो अंडरस्टैंड करता है वो बंदा रखो, क्योंकि अदरवाइज ट्रेडिशनली इट वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ IT डिपार्टमेंट, ठीक है। अब IT में जो लोग बैठे हैं वो IT तो अच्छी तरीके से रन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जी ऑटोमेशन किस तरह से करनी है, डिजिटलाइजेशन किस तरह से करनी है, बट उनको ये नहीं पता, या वो हर वक्त जैसे आप फॉरन दिन में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लोग कई आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उसको देखते हैं कि यार आजकल क्या हो रहा है, क्या अटैक्स किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट स्पेशलाइज्ड डोमेन है विद इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो वो उन डोमेन्स के ऊपर ना उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, बल्कि इवन आप किसी हेड ऑफ IT से पूछें तो उसकी अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर इतनी अच्छी नहीं होती, बल्कि बहुत सारी उससे बेसिक चीज़ें नहीं पता होती। तो अगर मैनेजमेंट बुला के पूछती है किसी भी हेड ऑफ IT को कि जी हमारी साइबर सिक्योरिटी कैसी है या हो गया, तो क्या कहता है, सर बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। और वी हैव इंस्टॉल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है। और उसके बाद वो सारे अटैक्स को रोक लेती है, ठीक है। एंड देन देयर कम्स अनदर फायरवॉल, ठीक है, दैट इज इवन a step further next generation to the previous next generation firewall, and it blocks each and everything, ठीक है। अब आप उधर जाके उसी जगह पे जहाँ पे ये सिक्योरिटी स्टेट ऑफ द आर्ट थी ना, वहाँ पे जाके अगर आप ऑडिट कर लें तो वहाँ पे ऑडिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार उसका तो उन्होंने पासवर्ड डिफॉल्ट का चेंज ही नहीं किया हुआ फायरवॉल का, ठीक है। और पॉलिसी हुई है कि मतलब एनी अलाउ
तो स्टेट ऑफ द आर्ट फायरवॉल क्या करेगी, और फिर आपको और मुझे जो इंडस्ट्री में लोग हैं उन सबको पता है कि भाई दिस इज नॉट जस्ट वन फायरवॉल. फायरवॉल क्या करती है, नेक्स्ट जनरेशन इज जस्ट अ बज़वर्ड, ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, आपने क्या क्या किन किन जगहों पे कंट्रोल है. तो यू नीड टू हैव अ मैन ऑन बोर्ड, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैनेजमेंट को जाके बताए, टॉप मैनेजमेंट को बताए. होता ये कि स्टेट बैंक ने भी जब रेगुलेशन पास की तो बैंकिंग सेक्टर में हुआ ये कि उन्होंने कहा कि यार सीजो रोल रखना जरूरी है. तो उन्होंने कहा यार इसको सीजो बना दो, इस वाले आईटी के बंदे को ना इसको सीजो बना दो, ठीक है. अब कुछ लोग डिफरेंट जगहों से सीजो बन गए, ठीक है, लेकिन उनको एम्पावर नहीं किया गया, ना उनको बोर्ड लेवल पे सोना जाता था, ना मैनेजमेंट लेवल पे सोना जाता था, ठीक है. तो वी यूज टू हैव अ सीजो इन बैंकिंग इंडस्ट्री, लेकिन वो कोई प्रॉपर सीजो नहीं था. तो अब सीजो का काम है ये बताना कि भाई हम लोग सिक्योर नहीं है, हमें हमें ये करने की जरूरत है, ठीक है, ये हमारे रिस्क हैं जो हमें देखने की जरूरत है, ठीक है. ये रिस्क असेसमेंट एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें, हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करें. वी नीड टू हैव अ टीम, वी नीड टू लुक इनटू दीस एरियाज, ठीक है. अब जब तक ये मैच्योर तो जो रेगुलेशन हैं वो कंपेल करते हैं. अब जैसे एससीसीबी का भी रिसेंटली रेगुलेशंस कुछ आए हैं कि जो इंश्योरेंस की कुछ इंश्योरेंस सेक्टर को वो देख रहे हैं, 2020 के अंदर रेगुलेशन आया, वो कह रहे हैं कि यार अपना सीजो रखो. तो मैं इससे एग्री करता हूँ कि भाई सबसे पहले यू नीड टू हैव अ पर्सन ऑन बोर्ड, ठीक है, जो कि क्या यार मुझे ये चीजें करने की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन, ये एरियाज को मुझे देखने की जरूरत है, ठीक है. तो रेगुलेशंस के बगैर किसी भी जगह पे मेच्योरिटी नहीं आती. अब जीडीपीआर ना होता तो यहाँ पे तो कोई इंसिडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता था. जीडीपीआर ना आता तो आपके ये जो कुकीज और ये जो प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न्स हैं ये एड्रेस ना होते, ठीक है. तो अब आपको वेबसाइट विजिट करते हैं तो दे टेल यू कि जी आपने ये कुकी इनेबल करना है, आप मैनेज करें, कुकीज को मैनेज करें. तो अगर रेगुलेशन ना हो तो बहुत सारी चीजें हम इग्नोर करते हैं. तो और हम बहुत सारी चीजें हार्डवेयर से लर्न करना चाहते हैं. तो रेगुलेशन इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर नहीं हो सकता. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. अच्छा, अब यही सवाल मैं लेके जाना चाहूँगा तौसीफ साहब के पास, लेकिन एक और पार्ट जो मैं चाहता हूँ आप इसके अंदर एड्रेस करें, और ये बाद में मैं अली साहब के पास और जवाद साहब के भी चाहूँगा एड्रेस करना, कि बिल्कुल इन लोगों ने सही एक चीज़ आइडेंटिफाई की है कि आईटी प्राइमरीली पहले साइबर सिक्योरिटी को देख रही थी, और अब जब ये इनको एक तरह से आपने अलग कर दिया है, और राइटली सो दुनिया में एज बेस्ट प्रैक्टिस वो चीज़ जो है वो इन्फोर्स होती है, तो ये जो पुश एंड पुल अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपीरियंस कर रही हैं बिटवीन आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है बेहतर तरीके से, और आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा. तो आई विल थ्रो दिस क्वेश्चन टू तौसीफ साहब, इफ यू कुड जंप इन एंड ब्रीफ अस. देखिए मुरीब, security is something that is there from all times. So it is not a new concept. And what security is, it is basically a quality ingredient into the systems that we have. So एक website है वो work कर सकती है without security, but definitely it will not work to that quality. Someone can come in and deface it, someone can take your data out or things like that. अब challenge ये है कि quality किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी इसके कस्टमर से ड्रिवन होती है, या जो भी जिस जगह उस प्रोडक्ट ने सेल करना है वहाँ की रेगुलेशन से. सो सेम इज द केस विद सिक्योरिटी. सो मसला यह है कि पाकिस्तान में कस्टमर्स आर नॉट वेरी कॉन्शियस ऑन सिक्योरिटी. सो दैट पार्ट तो हमें थोड़ा सा आई थिंक इट्स अ जर्नी दैट इज स्टार्टेड ऑलरेडी, बट आई थिंक वी नीड टू हिट सम मैच्योरिटी कर्व देयर, एंड इट विल टेक नॉट फ्यू इयर्स बट आई थिंक सम इयर्स, जहाँ पे हमारी आवाम को वो प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो. सेकंड थिंग इज रेगुलेशन, और थर्ड थिंग इज द बिजनेस इटसेल्फ रियलाइज, क्योंकि जब सिक्योरिटी ब्रीच होता है so what happens is you lose your reputation, you lose your customers. So all the customers which may not be you can say that well aware with the security concerns, they are not giving that respect to that, but as soon as they see that their data is somewhere posted on Facebook or some other social media or some other dark web, then they get really conscious, and then they start thinking if I should really use this service or not. So I think all of these things really come into play. Or Pakistan, I think things are being done. So I would like to first very quickly cover your first part of the question, and then I will come to IT and information security part as well.
So in Pakistan, I think banking sector has a couple of regulation. PTA has recently given a very strong regulation that is already due. That is already started, and it will be due by somewhere 21st of July 2021. So we as a telco sector are bound to comply to that regulation within few months from now. Similarly, I think some of you have already heard that a national cybersecurity policy is underway. So its draft version is there. I can maybe paste the link in chat. So that policy is there. We as an industry and sector has already given our feedback to that. So that is talking about very good things like national SOC, national CERT, appointment of CISO is also covered, I think, in section 3.4. So there are very good things that are covered. So if we have an umbrella policy framework, and then we have regulations in banking, telco, and other sectors, so I think we are very well placed. So journey that was not even getting started in last few decades is now being taken up very fast in Pakistan. So last 2-3 years, I think things have really changed. Similarly, data privacy regulation is there. So it's almost taking a lot of things from GDPR. Maybe I can say at least 80% of overlap is there in the draft version. So I think it's a good thing that we are learning from them who have really worked on it. So European region has really worked on it from last 20-50 years. So I think it's good thing that we start learning. We have started taking things from there rather than trying to reinvent the wheel. But the second thing is, I think that Jawad was saying that there are many mature banks, and then there are some banks that are not that mature. It is not possible to bring them one night under the same umbrella. So that will be a challenge, how we bring all of this in one umbrella. But I think things have started. So data privacy policy is there, security policy is there, regulations are coming. So I think we are, and let's see if we have something for the digital players as well, because that is very important. When it comes to IT and information security, so that has been a very interesting topic in the information security circles and maybe IT people as well. So my viewpoint here is that I think if you start from top and you go to bottom, so we have a concept of governance and operations. So I will try to make it a bit simpler for the audience, and we have learned it with very hard lessons. At least I have learned it very hard lessons. So it is not always easy. So what happens is, let's say if we have an organization like NADRA, let's take that example. So NADRA is an operations that is responsible to make ID cards and the passports and all those things. So they facilitate in that, bringing all the customers' national data in one system. But who is governing that? The government of Pakistan, right? So when it comes within NADRA, what happens? So there's certain IT department who is responsible to store that data in those systems. There is some department who go and liaison with people, establish offices to facilitate the customer. But then there is some management people sitting who are the governors. So it's a governance and operation process. It go from top to bottom at every level. Same is the case with the information security and IT. So within any organization, information security is the governance layer, and the operations go to the IT. So I think as soon as we understand this concept, then this rift should go away. Then IT should really understand that this is not for any personal interest. This is something, a business agenda, and there is a body within the organization who is holding this mandate in the governance role, and they have their say, they have their subject matter expertise, and we are doer in this stuff, and we will do that. Maybe an IT department in organization ABC outsource it to another partner. What happens? Then they itself in their role are governance, and the managed service partner is operations. So I think we need to understand this concept. There is a governance and operation role in every organization, in every field. The challenge here is definitely IT started to take up this information security role. Good or bad, this is now getting more attention. So it's not easy to leave it. Sometimes it's not easy to leave IT and come in information security, and then all those small rifts and things start popping up. But my take on this is, I think this is something that we need to understand within an organization, that there is a governance role and then there's an operational role. And I think we are there to play our part. And this is it. So that's my take on this. Maybe I've tried to make it simple.
But if there is any subsequent question, I can try to answer that. Yeah, I would like to take this question now to Jawad साहब. Jawad साहब, please आप थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें कि किस तरीके से आप लोगों ने क्या चीजें ऑब्जर्व की हैं जो हम रिफ्ट देख रहे हैं, क्योंकि ये रिफ्ट अगेन दिस इज नॉट यूनिक टू पाकिस्तान, ये चीजें आई थिंक यूनिवर्सल है, और क्या तरीका कार है इस चीज को रिफ्ट को खत्म करने का, क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो भी प्लीज हमारे साथ शेयर करें. अगेन मुनीब, ये जैसे तौसीफ और अलीन ने भी कहा कि इट्स अ प्रिटी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इस पे जो है काफ़ी डिबेट चलती है इनर सर्कल्स में, आईटी के अंदर भी और सिक्योरिटी साइड पे भी. मेरी टेक, क्योंकि बीइंग मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री से गुज़िश्ता कोई 14-15 साल से मैं हूँ और साइबर सिक्योरिटी में ही हूँ, तो मैंने ये तमाम रेनेसेंस देखी है, रिफ्ट देखी हैं, और मैंने इस चीज़ को बहुत विटनेस किया है करीब से. जब मैं ZTPL में था, आई वॉज पार्ट ऑफ IT, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का फंक्शन IT में रिपोर्ट करता था. इतनी ज़्यादा वो अवेयरनेस नहीं थी उस लेवल पे कहीं पे भी. उसके बाद व्हेन आई कम टू MCB बैंक एज अ हेड इंफॉर्मेशन, हेड कर रहा था, I was reporting to CIO. उसके बाद when I went to Allied Bank में ये फंक्शन CRO को, I was reporting to CRO. उसमें ये फंक्शन रिपोर्ट कर रहा था CRO को, और then same here in Askari Bank I'm reporting to CRO. उसमें जहाँ तक आपने IT और सिक्योरिटी के फंक्शंस की बात की है, उसके अंदर जो सीसो का जो आई है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जो आई मीन्स फॉर इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस मीन आप कितने अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं विद रिस्पेक्ट टू IT. आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो अली ने भी बात की, जो मैंने सीसोस को देखा है अभी इंडस्ट्री के अंदर, दे आर कन्वर्टेड फ्रॉम ऑडिट बैकग्राउंड, फ्रॉम IT बैकग्राउंड, फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बैकग्राउंड. उनका मतलब दे आर कन्वर्टेड किया, तू बन जा भाई, यार इनू ला दे है. CIO सेड कि यार मैनू बड़ी अच्छी तरह जानता है, मैनू बड़ी अच्छी तरह जान है, मेरी बड़ी लाइन लगती है, नाल ते इनू बना दियो सीसो. तो उसमें होता ये है कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोचना और समझना शुरू करते हैं, तो पानी इतना ऊपर से गुजर चुका होता है आपसे, तो आप उसको पकड़ नहीं पाते IT वालों को, राइट. आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करना है. अपनी जितनी भी जस्टिफिकेशन आप प्रॉपरली दे सकते हैं अपने नॉलेज के साथ, तो आप चीजों को, हम ये करते हैं मोस्टली, सीसो शॉप यही करती है, मैं इनको खुद भी अपनी कम्युनिटी को भी रगड़ना चाह रहा हूँ, कि हम कहते हैं यार रोक दो सारी चीजें, भाई ये नहीं हो सकता, राइट. ऐसा नहीं होता है. एटीट्यूड मोस्टली सिक्योरिटी प्रोफेशनल में होता है कि यार साड़ी मर्जी तो बगैर चल रहे हो, तो मतलब यह चीज मैं रोक देनी है, तुम नहीं कर सकते, राइट. ये चीजें नहीं होनी चाहिए. आपको IT के साथ प्रोफेशनल कुछ डिफरेंस रखते हुए आपको IT को ऑन बोर्ड रखना पड़ता है कई चीजों के अंदर. आपको एक पॉजिटिव सिनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है. आपको फाइटिंग मोड, देखें, आपने रहना है, उन्होंने भी रहना है. यू हैव टू रियलाइज कि आपका जो इन्फ्लुएंस है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, राइट. आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस को भी यूज कर सकते हैं. यू हैव द पावर, यू हैव द अथॉरिटी नाउ. बट द थिंग इज कि आपने बिजनेस को पैडल अप करना है, चलाना है. आपने चीजों को रोकना नहीं है. अगर आप रोकते हैं तो जस्टिफिकेशंस दें कि इसका वर्क अराउंड क्या है. अगर आप ये नहीं करते तो डेफिनेटली यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट. आपकी ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर डूइंग बिजनेस. अगर आपकी क्रिएटेड करदा चीजों में हर्डल आ रही है, तो यू आर ऑड मैन आउट. तो राइट, क्योंकि CIO एक अच्छा बच्चा बन जाता है, क्योंकि उसको उससे चीजें डिलीवर करके दे देता है टाइमली. हाँ जी ठीक है, ये कर लो, वो कर लो, चीजें डिलीवर कर दो, राइट. सीसो एक गंदा बच्चा बन जाता है कि यार वो कहता है कि ये कर लो, वो कर लो. बट आपको, मैंने जैसे पहले भी कहा था ओपनिंग स्पीच में, यू हैव टू बी एजाइल नाउ. जिस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हिट कर रही है बैंक्स को, फिनटेक्स आ रहे हैं, जिस तरह हम आउटसोर्स करते जा रहे हैं, थर्ड पार्टी रिस्क बढ़ता जा रहा है. अब आप स्टैटिकली नहीं लेके चल सकते.
आपको चीजों को एजाइल पे जाना है, और अब फाइटिंग मोड में भी आ सकते। कई CIOs में ये रियलाइजेशन आ रही है अभी। जब कुछ चीजें मैं कमेंट्स में भी पढ़ रहा था, जब सीसो का रोल पीयर पे आ जाएगा CIO के, थिंग्स वुड बी डिफरेंटली चेंज्ड, और ये रोल इवॉल्व होगा बाय द टाइम। ये ऐसा नहीं होगा कि मतलब इसके अंदर आप शक्ल देख के ये कर लें वो कर लें, ऐसा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रिफ्ट जो है, जितनी जल्दी सीसो शॉप भी और CIO शॉप भी खत्म कर लें बेहतर है, क्योंकि इन द एंड होता ये कि दोनों पार्टीज गंदी हो जाती हैं। या विटनेस्ड इन मैनी बैंक्स के वो किसी ना किसी को फिर कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है अपनी जॉब। तो रादर ये हम जो है, मैं तौसीफ की बात भी करूंगा, हम एक साइड पे फर्स्ट लाइन ऑफ ऑपरेशंस भी देख रहे हैं SOC के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी साइड पे हम गवर्नेंस भी कर रहे हैं हम डिक्ली। तो आपको ये चीजें जब आप ऑपरेशंस का पार्ट बन जाते हैं, तो डेफिनेटली IT के साथ आपकी प्लस माइनस ना चाहते हुए भी होती है, क्योंकि जिस लेवल पे आप चीज को लेके जा रहे होते हैं, वो IT उसको डिफरेंटली देख रहा होता है। बट यू हैव टू क्रिएट पॉजिटिव सिनर्जी। अब आप उस चीज को नेगेटिव नहीं कर सकते, और इन द एंड आप नुकसान आप अपना ही कर रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं आता। इन द एंड नुकसान होगा, नए बंदे ले आएंगे, नई हायरिंग हो जाएगी। आई थिंक चीजें चलती है। Very interesting. I think बिल्कुल I think you have summed it up pretty well. And आई थिंक I think we have lost you. Okay, all I was saying was all I was saying was that you have version. yeah, I was saying that you have summed it up very nicely कि हमें इस चीज को बाइनरीज में नहीं देखना कि हर चीज को yes and no और एक constant battle के अंदर नहीं। I mean एक professional obviously differences आपके पास होते हैं, और अगर हम इसको बाइनरीज में देखते रहेंगे हर वक्त IT वर्सेस सिक्योरिटी और बेसिकली बिजनेस को इनेबल नहीं करेंगे, तो एट लार्ज हम बेसिकली सिक्योरिटी को कॉस्ट कर रहे हैं। जो इंटायर नैरेटिव है सिक्योरिटी के साथ, हम बेसिकली उसके लिए डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। और ऑलरेडी सिक्योरिटी अभी भी बहुत ज्यादा, अगेन दिस इज नॉट यूनिक टू पाकिस्तान, अभी भी काफी हद तक इन्फेंसी स्टेज में है। हम बहुत हद तक आगे आ गए हैं, लेकिन अभी भी ये अगर चीजें चलती रही तो ये चीजों को मजीद स्लो डाउन कर सकती है। तो अच्छा, मेरे पास फाइनेंशियल सेक्टर का, बैंकिंग सेक्टर और टेलको सेक्टर का आगे पॉइंट ऑफ व्यूज आप लोगों ने बता दिए, गवर्नेंस वगैरह किस तरह से चल रही है। हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें कि जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, जो अब अगेन न्यू वेज ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस जो इमर्ज कर गए। अगेन हमने बात की करीम की, हमने बात की बाइकिया की, आपके पास जो है ये फूड पांडा है आपके पास। अगेन ये भी वो सर्विसेज हैं जो कि सोसाइटी के अंदर वैल्यू ऐड कर रही हैं, और ये दे आर कंटेनिंग अ लॉट ऑफ यूजर्स डेटा। तो इनकी रेगुलेशन के लिए हम कहाँ खड़े हुए हैं और क्या काम किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो अली इमरान साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा, अगर आप प्लीज इसके ऊपर अगर आपकी कोई इनपुट्स हैं तो प्लीज शेयर करें हमारे साथ। मुनीब, अनफॉर्चुनेटली बहुत इन पे काम नहीं किया गया, कोई रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ चीज़ें इमर्ज हो रही हैं जो कि एक खुशाइन चीज़ें, जैसे जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आई थी 2018 में, मिड ऑफ 2018, उसमें जिक्र था कि हम अपने साइबर स्पेसेस को सिक्योर करेंगे और हमारी नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कोई फॉर्म करेंगे विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स एट दैट टाइम जैसे। और हमारा कोई सिविल मिलिट्री कंबाइंड जो है वो साइबर कमांड फोर्स बनेगी। एंड देन कुछ स्ट्रेंथन करने की बात की थी कि जो साइबर क्राइम विंग है FIA का और नेक्टा का साइबर सिक्योरिटी विंग है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। तो दिस वाज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ठीक है, जो कि इतनी रेलेवेंट नहीं है हमारी इंडस्ट्री के। मतलब वो अगर नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का जिक्र करिए तो दैट वाज नॉट मच रेलेवेंट, है ना। अगर वो बात करते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट की बात करते हैं तो इट्स मोर रेलेवेंट। मिनिस्ट्री ऑफ IT ने डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का जो ड्राफ्ट है वो अभी स्टिल उसके अंदर कंसल्टेशन ड्राफ्ट है।
वो उस पर वो लेके आए हैं, उस पर काफ़ी इंडस्ट्री में बहस भी चल रही है, लोग इनपुट भी दे रहे हैं। इसी तरह से नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बहुत इनिशियल उसका ड्राफ्ट है, वो भी कंसल्टेशन ड्राफ्ट है, अभी जनवरी में वो आया है, उस पर भी लोग बात करें, लेकिन डेफिनेटली वी नीड रेगुलेशंस, ठीक है। अब इन सब पॉलिसीज में भी इवन ये कहा गया कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी या सेंट्रल एक एंटिटी होगी जो कि इन रेगुलेशंस के ऊपर काम करे, ठीक है, और ये काम करेगी। इवन जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें उसमें भी है कि एक और चीज बनेगी और वो आगे काम करेगी, ठीक है। तो अभी इट्स लॉन्ग वे टू गो, ठीक है, ऐसा चाहिए। लेकिन वही मैंने जो पहले बात की थी कि एक फिर लोग अगर रेगुलेशन नहीं होंगे तो फिर लोग लर्न करेंगे, लेकिन द हार्ड वे, ठीक है। तो यही होगा कि क्रीम का डाटा भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, बाइकिया का भी हो गया, ठीक है, क्योंकि देखें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि यार रिस्क क्या है, ठीक है। मतलब हमारी सिक्योर कोडिंग क्या चीज होती है, ये जब तक कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट नहीं होगा, बंदा नहीं होगा, ठीक है, तो क्या बताएगा कि यार सिक्योर कोडिंग क्या होती है, या अगर कोई ब्रीच भी हो जाता तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे खत्म करेंगे। जहां तक बात ये है कि आईटी और इसकी रिफ्ट का, उसमें मैं कमेंट करना चाहता था कि देखें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम बैंकिंग सेक्टर में हैं, जिसमें आईटी सिक्योरिटी जो है वो सीजो को रिपोर्ट करती है, ठीक है, जो कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में और कहीं नहीं है। अच्छा, इसका और ये इट्स वर्किंग रियली गुड, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी कोई रिस्क नहीं है सच, ठीक है। और ये मेरा ख्याल था कि यार जो लोग इन्फोसेक के नहीं हो, सिंपल आईटी के हो, उन्होंने ट्रेनिंग लिया, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लिया, फॉर एग्जांपल किसी भी सिक्योरिटी डिवाइस के ऊपर, एंड दे नीड टू चेक और अनचेक एनी फीचर, ठीक है। तो उस चेक एंड फीचर को अनचेक और चेक करने के पीछे भी यू नीड टू हैव अ कॉन्सेप्ट ना। तो आपको आईटी साइड पे भी रहते हुए आईटी सिक्योरिटी, प्रॉपर आईटी सिक्योरिटी का आपको यू नीड टू गेट गुड एजुकेशन, ठीक है, अदरवाइज आईटी सिक्योरिटी में भी आप नहीं जाओ, ठीक है। और फिर आईटी सिक्योरिटी अगर सीआईओ को रिपोर्ट कर रही है तो इज इट डिफिकल्ट कि वो सीईओ को रिपोर्ट ना करे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और आप इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को, फायरवॉल्स को आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, जो चेक पॉइंट्स जितने भी कंट्रोल है उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। अच्छा, बट यू नीड इज बेसिकली आपको थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल होना है, ठीक है। मतलब आईटी पाकिस्तान तक में मैंने देखा है कि आईटी जो है वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर जो है ना, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी लूज बॉल्स करवा देता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का ना, मैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के इस रोल को, इवन इफ इट्स रिटन इन बुक्स, ठीक है, आई प्रैक्टिकली डू नॉट एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट कि जी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का रोल जो है वो ये था कि ये चीजों का रोल ये था कि मैंने कह दिया था, देखो इस अप्रोच को मैं कहता हूँ मैंने कह दिया था अप्रोच, ठीक है, कि हमने तो कह दिया था, हमने तो बता दिया था, ठीक है। अब देखिए मेरा एडवाइजरी रोल जरूर है, मैं हर चीज में प्रैक्टिकल रोल मेरा नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन अगर ये मैंने कह दिया था, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी जब इंसिडेंट हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, वो कहते हैं वेयर इज द सीईओ, ठीक है। बिफोर दे कॉल देयर सीआईओ, ठीक है, वो कहेंगे वेयर इज द सीईओ, भाई आप क्या कर रहे थे, आप किस जगह पे बैठे हुए थे आप, ठीक है, आप सत्तू पी रहे थे, मतलब इन अदर वर्ड्स अगर थोड़ा सा इनफॉर्मल बात, तो बात ये कि आप सोए हुए थे, यानी कि इन अदर वर्ड्स बात ये कि जब आपकी आखिर में गर्दन आपकी करेगी तो यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यू हैव टू कम ऑन फ्रंट फुट, ठीक है। और आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले, इस चीज को अक्सर लोग यही भी कहते हैं यार कीचड़ में क्या पाँव मारना, क्योंकि ऑपरेशन में यू नीड टू बी देयर 24/7, लेकिन इट्स वर्किंग फॉर अस, ठीक है। और इसमें यू हैव टू बी मतलब देखें आईटी जो है हमेशा टेक्निकली कुछ ऐसी जार्गन सेट करता है आपको कि आप उसको प्रॉपर आंसर नहीं कर सकते, या आप किसी जगह पे आप उनको वीक बॉल्स दे देते हैं और वो उसके ऊपर छक्का मार देते हैं, तो आपको यू हैव टू बी टेक्निकली साउंड, ठीक है जी, इसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब देखें इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में आपको नेटवर्क सिक्योरिटी रिसोर्सेज हैं वो रिव्यू करते हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की रिव्यू की जॉब नहीं, रिव्यू की जॉब है यार ऑडिट की जॉब रिव्यू की है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कहते हैं आईटी को कौन रिव्यू करेगा, मतलब यही बहस चलती रहती है, ठीक है। देखें रिव्यू अगर करना है ना किसी ने, तो एक डिपार्टमेंट के अंदर भी रिव्यू हो सकता है, ठीक है, तो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर होता है कि यार मेकर और चेकर एक ही डिपार्टमेंट से होते हैं, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट से नहीं होते, ठीक है। तो इधर भी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी इस तरह का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि अगर एक से अगर आपने रिव्यू करना है और जितने भी रिव्यू के आपके प्रोसेस हैं वो दूसरी टीम को फॉर्म कर ले, आपके पास जीआरसी की टीम भी है, ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें कर सकते हैं और इट वर्क्स रियली वेल। बहुत सारी चेक पॉइंट कंट्रोल जो हैं
उसकी आईटी को हम वो बता के वो इवन एक्सप्लेन करके वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करवा सके जो कि हमने खुद की हुई है। तो रिफ्ट को वो काउंटर करने के लिए यू नीड टू हैव मोर टेक्निकल पीपल इन योर टीम, ठीक है। और मैं ऐसे कहूँगा, और जो बाकी आपके क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं, जो रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस जब तक नहीं होंगे, मैंने पहले भी कहा, उस वक्त तक ये फायर फाइटिंग मोड चलता रहेगा, ठीक है। और कंज्यूमर्स की ये जैसे पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट अगर आ जाता है, प्रोमलगेट हो जाता है अभी, लेकिन उसको काफ़ी टाइम है, तो उससे कुछ ना कुछ होएगा। लेकिन देखें, जब भी कोई भी लॉ पाकिस्तान में आता है ना, अगर उसके साथ इन्फोर्समेंट का पार्ट नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑर्डिनेंस 2002 आया पाकिस्तान में, ठीक है, उसने कहा कि एक वो बनेगी, क्या कहते हैं, सीए बनेगी, एक सर्टिफिकेशन, पीकेआई का पूरा कॉन्सेप्ट होगा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को, वो आज तक नहीं बना। 2002 से लेके अभी 2021 आ गया, ठीक है। तो इसमें कुछ एफर्ट स्टार्ट हुई, लेकिन वो बना नहीं, ठीक है। तो पीकेआई, तो आज पीकेआई से रिलेटेड गवर्नमेंट लेवल पे कोई अभी तक कोई चीज प्रॉपर बनी नहीं, या उसमें कोई फंक्शन नहीं। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो कि जैसे बहुत सारे ऑर्डिनेंस ऐसे आते रहे, उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल लेजॉन करेंगे, जैसे साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत सारी। अब मैं खुद कुछ अर्सा मैंने एफआईए में भी सर्व किया कि साइबर क्राइम बैंक में, तो मैंने ये देखा कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं है हमारी, ठीक है। अब लिखा हुआ है, लॉ के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन कौन करेगा? एफआईए जो है वो उसको सिर्फ इन्वेस्टिगेट करता है, दैट इज द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, ठीक है। और जो असल लॉ बनाने वाली है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है या मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, जिनके साथ कंबाइंड वो लॉ बन सकता है, ठीक है, दे डोंट नो कि यार उनके मसाइल क्या हैं, उन्होंने इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे करनी है, हमें रेटिफाई करने की जरूरत है, हमें कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज रेटिफाई करने की जरूरत है। तो कौन करेगा उसको? वो पीका उस वक्त था, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस शरफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो चलते चलते वो खत्म हो गया, फिर वो आ गया प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट आ गया 2016, ठीक है। लेकिन ये चीजें जो है, जो लॉ में इवन आ भी जाती हैं, उसके ऊपर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उस पर बहुत स्लो एक्शन है पाकिस्तान के अंदर। सबसे ज्यादा तो हमें इन्फोर्समेंट स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर लॉ मौजूद है और इन्फोर्समेंट नहीं है, तो मतलब वो इसी तरह जैसा पॉलिसी है, लेकिन नोबडी नोस कि यार आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी है, ठीक है, आपने वो पॉलिसी रखी हुई है दिखाने के लिए, ठीक है। तो दिखाने वाले लॉज भी यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं जो कि इन्फोर्स नहीं होंगे। तो अब स्टेट बैंक जो है ना, स्टेट बैंक, वी आर हैप्पी विद द स्टेट बैंक, ठीक है, क्योंकि स्टेट बैंक उसको इन्फोर्स भी करता है। स्टेट बैंक जो है वो अपनी इंस्पेक्शन टीम्स को भेजता है और बहुत लंबी चौड़ी ऑब्जर्वेशन जो है वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर निकालता है। तो अक्सर बैंक जो है वो इसलिए भी बहुत से काम कर रहे होते हैं कि स्टेट बैंक आने वाला है, ठीक है। तो दैट्स गुड पार्ट एट स्टेट बैंक एंड की वो वहां से कुछ इन्फोर्समेंट भी हो रही है, कोई कंप्लायंस चेक्स भी हो रहे हैं। अगर लॉ मौजूद रहेगा और कंप्लायंस नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। पहली बात तो कि बहुत सारे सेक्टर्स को तो लॉ, आप पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को कौन सी उसमें साइबर सिक्योरिटी, कौन सी ओटी सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में कौन से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट नाजरा एंड फ्यू अदर, ठीक है, जहाँ पे आप कहें कि जितनी सर्विसेज हो रही हैं, आप जैसे आर्म लाइसेंस आप कह रहे हैं कंप्यूटराइज हो गए हैं सारे के सारे, यानी कि कितने लोग, कितने थाउजेंड ऑफ पीपल का डाटा वहाँ पे मौजूद होगा उनके पास। बट क्या हो रहा है इसके बाद? तो बस यही है मेरा टेक इसमें। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और चीज ये है कि देखें, जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, जैसे आप सही कह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर या टेलको सेक्टर पे प्रोबेबली स्टेट लेवल पे ओवरसाइट जरा अच्छी होगी, लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि ये जो प्राइवेट सेक्टर की भी जो सिक्योरिटी है, ये इवेंचुअली इट मेल्ट्स डाउन टुवर्ड्स द नेशनल सिक्योरिटी। हम इन दोनों चीजों को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। अभी आई रिकॉल, अभी इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग जब हुआ तो उन्होंने वहाँ पे गवर्नमेंट के सेक्टर से ये बात हुई कि अब जो सिक्योरिटी का जो हमारा पैराडाइम है, इट विल बी ऑल एनकम्पसिंग, जिसमें ऑब्वियसली वो साइबर सिक्योरिटी को भी जो है वो इंक्लूड करेंगे अलॉन्ग विद अदर सिक्योरिटी डायमेंशंस। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा डिविएट करता हूँ और मैं प्राइवेसी के पार्ट को लेकर आना चाहता हूँ कि हम प्राइवेसी के जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो इन्होंने पहले जो है वो ड्राफ्ट किया था, आई रिकॉल आई थिंक 2017 में, और फिर शायद उसकी रिविजन्स हुई हैं। आई रिमेंबर हैविंग रिटन ऑन दिस बैक इन 2018 जब पाकिस्तानी बैंक्स जो थे वो थोड़े ब्रीच हुए थे, तो आई रिमेंबर, और काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं उसकी GDPR के साथ। बट आई वांट टू स्टार्ट
from this point of view, और फिर मैं जाऊंगा बाद में तौसीफ साहब के पास और जवाद साहब के पास यही क्वेश्चन लेके, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। पहले एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि क्या प्राइवेसी जो है वो ईस्टर्न सोसाइटीज के लिए क्या वो एक एलियन कॉन्सेप्ट है, क्या वो एक नया कॉन्सेप्ट है? क्योंकि हम इसकी मैनिफेस्टेशन वेस्टर्न सोसाइटीज में तो देखते हैं बड़े अरसे से, अगर आप छोड़ दें यानी कि रेगुलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू का आप छोड़ भी दें, लेकिन प्राइवेसी इन्वेजन जो है वो यानी कि एक तरह का मॉरल क्राइम कंसिडर किया जाता है। और प्राइवेसी इन्वेजन, आप दूसरे की लाइफ के अंदर इन्वेड करना, उसकी प्राइवेसी को इंटैक्ट करना, ये बड़ा आई मीन इट इज हेल्ड इन अमंगस्ट हाई वैल्यूज। लेकिन हमारी सोसाइटीज के अंदर, ईस्टर्न सोसाइटीज में, क्या प्राइवेसी एक एलियन कॉन्सेप्ट है? अगर ये एलियन कॉन्सेप्ट है तो, और ये सोसाइटी का एक पार्ट है, तो ये बोर्ड लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग के अंदर कैसे इम्पैक्ट करता है? इस पे आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस है? Mudeep, maybe I can take this question. Yeah. So I don't think a privacy alien concept है. So we as a Muslim, I think we have been taught from the beginning कि किसी के घर जाना है तो 3 दफा नॉक करना है, नहीं तो वापस आना है. We are not allowed to enter at our own will. हम सबके घरों में दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, खिड़की पे पर्दे लगे होते हैं. This is privacy. हमें, I think many of you will remember कि किसी की टो में मत रहो, मुसलमान को ये कहा गया. So this is all privacy. So this is all in our fabric. हम उसको शायद समझ नहीं पा रहे जब हम फिजिकल से डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं. वो शायद वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी वीक है, क्योंकि हमें से बहुत से लोग जिन्होंने सोशल मीडिया को नहीं समझा, यूनिवर्सिटी को नहीं मिले, मतलब यूनिवर्सिटी में नहीं गए या सोशल मीडिया को एक्सप्लोर नहीं किया, उनके लिए फेसबुक इज जस्ट एन ऐप और एक शुगर लगा हुआ है, और वो एंड देन दे आर यूजिंग इट एंड दे डोंट नो कि व्हाट दे आर शेयरिंग. आप उनमें से किसी बंदे को पकड़ें और उसका आस्क हिम whatever you have written in last 6 months on Facebook, stand on this stage and tell it to everyone in your city. They will say, no, I cannot. Right? So only thing is कि transition है from physical to the virtual digital world. So that is something that we have not understood, right? Uske consequences are not understood wide in the society. Otherwise, I don't think that it is something alien. However, for the businesses, to be very blunt, they always try to make maximum money. And here comes the regulation, what Ali is saying. They know they need to ensure security. They know that they have to ensure privacy and security, but they don't, because that stops them. That stops them in a way to do business freely. Maybe then there are certain restrictions that you have to observe. Maybe you have to invest more money, so you're not as much profitable. So if you are making this much of profit without security, you will make this much with security or privacy. So these are the things I think that play their part. But slightly answering your previous question, so for the digital things, yes, we have the data protection policy in there, and that will make sure that the apps like Cream and Bykia and all those make sure that they have the right level of privacy. You just take one element that you have to secure your customers' personal data. You have to make sure 80 to 90% of the security commitments. You cannot have privacy without security. No way. So as soon as you have that regulation, that is maybe very generic, but still it will work for all the industry sector. Maybe I can paste that link here in the chat as well. And one more thing, I will very quickly like to give in one sentence my view on IT and security rift. So I will like to restate that. I think while we read information security, what we read: confidentiality, integrity, availability. If CIO and CISO take all this in their role, if CISO understand that their role is availability as well, if CISO really understand that my role is not to secure, my role is not to secure what I have read in books, but my role is to secure business. So if I am not allowing any business process to go live, it means I am already risking my business. I am not de-risking it. So if I understand that I have to reduce the risk for the overall business with all the good security that we have studied in text, with all the good security that we are discussing here, we discuss on social media and everywhere, then I think we can reduce this risk. So however, if we start fighting on the nitty-gritty technical stuff,
it's a never-ending game. It will continue. It's a passion for the technical geeks, and it will never stop. So that's my quick take on that. But I think we can take the round table or something like that. Yeah. I'll go to Jawad Saab on this one. Again, very interesting what Tasir was saying कि ये आइडियाज हमारी सोसाइटी के अंदर बेसिकली ये वैल्यूज के तौर पे इनग्रेन्ड है, लेकिन शायद वो वैल्यूज अगर वो मैनिफेस्टेड नहीं है तो वो प्राइवेसी एक एलियन कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो उसके ऊपर मैं चाहता हूँ, क्योंकि जवाद खालिद साहब जो है वो एक बड़े उसको फोरम को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करें बिसाइड्स बीइंग द सीसो, तो मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि जब डिस्कशंस होती हैं, पॉलिसी लेवल डिस्कशंस होती हैं, वहां पे किस तरीके से देखा जाता है प्राइवेसी को, क्योंकि अगेन बिल्कुल सही तौसीफ कह रहे हैं कि इट कम्स विद अ कॉस्ट एज वेल, तो किस तरीके से देखा जाता है और कैसे प्रायोरिटाइज किया जाता है प्राइवेसी को? देखिए, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी ये बात। अंदर कैटेगोरिकली मेंशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। ये अभी से नहीं है, ये फ्रॉम 60s से ये चीज लिखी हुई है कि यू हैव टू सिक्योर और प्रिजर्व योर कस्टमर डेटा। तो बैंक्स ऑलरेडी इस चीज को एडहेयर करते हैं, पहले उसको डेफिनेटली कर रहे थे। अब जैसे जैसे हम डिजिटल चैनल्स पे आना शुरू हो गए, अब डिजिटली चीजों को देख रहे हैं फॉर द कस्टमर या कंज्यूमर प्रोटेक्शन को। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जब ये प्रोटेक्शन बिल आया भी नहीं था 2018-17 में, आई वाज पार्ट ऑफ एन एपेक्स कमेटी एट विद स्टेट बैंक, जो कि हम कस्टमर एंटीसीडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे और कुछ चीज़ों को हम देख रहे थे, जैसे TCS को डेटा शेयर होता है या बाकी जगहों पे डेटा शेयर होता है, उसको किस तरह से देखना है इन लाइन ऑफ स्टेट बैंक गाइडेंस। तो दिस बिन देयर इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री, ये पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, बट द थिंग इज जिस तरह से आपका दारोमदार कार्ड के ऊपर हो गया, क्रेडिट, वेदर इट कुड बी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका स्मार्ट कार्ड्स आ गए, आगे जाके अभी मैं देख रहा था कि अभी वैक्सीनेशन का डेटा आना शुरू हो गया फ्रॉम नादरा साइड, कि आपको एक कार्ड मिल जाएगा या एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने वैक्सीनेशन करा ली है। और मोर ओवर आपकी जितनी वेरिफिकेशन है टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो आपकी एंटीसीडेंट्स के ऊपर है। तो बाय दैट मीन आपका जो पर्सनल डेटा है वो काफी हद तक जो है वो इट मीन समथिंग। तो उस चीज को लेकर के अब उस चीज को लिया जा रहा है काफी स्ट्रांगली पाकिस्तान के अंदर भी। अब डायमेंशंस डिफरेंट है, इश्यूज डिफरेंट है। अब पहले एक कम्युनिटी हिट होती थी, अब ये कि ये इट पर्टेन्स टू एवरीबॉडी, इट पर्टेन्स टू, मैं भी उसका इफेक्ट हो सकता हूँ, आप लोग भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, पहले इतना इम्पैक्ट फील होता नहीं था क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट नहीं थी, इतनी यूजेज में नहीं थी। अब आपका सारा रिलायंस बिजनेसेस का भी और हमारा भी डे टू डे लाइफ में, आपने जहाँ इनिशियल शुरू की थी टॉक, वहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, वहाँ पे आपका सारा एम्फेसिस टेक्नोलॉजी के ऊपर है। और टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने सेकंड एक चीज में कहा था कि जहाँ आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वहाँ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक थर्ड पार्टी रिस्क भी लेते हैं ऑन मेनी साइड्स। जैसे इक्विफिक्स का हैक अगर देख लें तो वो एक थर्ड पार्टी जो उनकी HVAC कंपनी थी, वो वहां पे ब्रीच होती है, तो साथ साथ साइड बाय साइड इक्विफिक्स ब्रीच होता है। द थिंग इज कि जितना जितना रिलायंस बढ़ता जाएगा ऑन डिजिटल साइड, उतना आप वल्नरेबल होते जाएंगे ऑन मेनी फैक्टर्स, और प्राइवेसी एंड दिस स्टफ इज वन कंपोनेंट ऑफ इट। Perfect. I think this we had a very interesting discussion और बहुत सारी चीजें हमने कवर की हैं। I would now like to actually go towards the question side. हमारे पास बहुत सारे questions भी आए हुए हैं। We'll take some of them क्योंकि बहुत सारे questions जो थे वो already आप लोगों ने जो है वो cover कर दिए। खास तौर पे as expected जो रिफ्ट की जो हम बार बार बात कर रहे हैं IT और सिक्योरिटी के साइड पे, उस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा रिलेवेंट भी है। अली अजीम जो है वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो
स्टेबल सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, अगेन जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर आ जाता है, टेलको सेक्टर आ जाता है, क्या इस चीज की कोई पॉसिबिलिटी है कि वो इनिशिएटिव लें, एक नेशनल लेवल यानी कि ऑल एनकम्पसिंग एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेके? क्या काम किया जा सकता है इस चीज के मामले में, अगेन टेकिंग द इनिशिएटिव फ्रॉम द फाइनेंशियल एंड द टेलको साइड फॉर द ओवरऑल गुड ऑफ the sectors that are not restricted to financial and telco sector? Jawad sahab, if you could. देखिए मुनीब, इसमें सबसे मैं बता देता हूँ, इसमें सबसे बड़ी बात ये कि हम पीछे क्यों रह गए। हम बेसिकली अपने इंटरनल मामलात पे इतना उलझे हुए हैं कि हम एज ए नेशनल लेवल जो कि एक रिक्वायरमेंट थी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की, हम बना नहीं सके। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का, आप पॉलिसी का नाम ले देना बड़ी अच्छी बात है, बट उसके जो कंपोनेंट्स है ना वो बहुत इम्पैक्टफुल है। ये अवेयरनेस की बात करती है, ये आपकी कैपेबिलिटी एनहांसमेंट की बात करती है, ये उन कोर इश्यूज की तरफ बात करती है जो कि एक नेशन को एज अ रेजिलिएंट नेशन लेके आते हैं या साइबर अवेयर्ड नेशन लेके आते हैं। आपका ITU में आपकी ग्लोबल रैंकिंग भी अभी दोबारा से रैंकिंग्स आने वाली हैं, अब पता नहीं क्या रैंकिंग होगी। वी स्टूड, जो लास्ट रैंकिंग थी अब प्रोबेबली 2019 की लास्ट आई है ITU की, वी स्टूड एट 92-93 पोजीशन, बिकॉज कि हमारी जो नेशनल लेवल की जो एक थिंकिंग होनी चाहिए लीडरशिप की, क्योंकि हम हमेशा से बात करते हैं टोन एट द टॉप क्या है। हम साइलों में तो छोटे मोटे काम कर ही रहे हैं, बट टोन एट द टॉप हमारे इश्यूज कुछ ऊपर ऐसे हैं कि ये इशू साइबर सिक्योरिटी का हमें लगता ही नहीं है कि यार साइबर भी कोई इशू है हमारी नेशन, हमारी लोगों की जिंदगी के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा आगे ब्रीफ भी करूंगा नेशंस किस तरह से बनती हैं। मतलब जब तक टॉप लीडरशिप इस चीज को रियलाइज नहीं करेगी कि साइबर सिक्योरिटी या हमें अपनी नेशन को कल्टीवेट करना है, मतलब टेलको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम अच्छा कर रहा है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री एक वर्टिकल है आपकी सोसाइटी का, उसकी मजबूरी है वो बेहतर काम करना, क्योंकि पैसा रखवाया हुआ है आप लोगों ने उसके अंदर, वो ट्रस्ट रीच हो जाएगा जब तक आप कंट्रोल्स आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। ये हमारी मजबूरी है। बट द थिंग इज के ओवरऑल रियलाइजेशन आपकी लीडरशिप लेके आती है कि यार हमें किस तरफ जाना है, डायरेक्शन क्या है हमारी। तो ये जब तक मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट साइड का, उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया है कि यार साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, आपकी रैंकिंग ग्लोबली बेहतर होनी चाहिए, आपकी रेडीनेस बेहतर होनी चाहिए। आज खुदा ना खास्ता एक नेशनल लेवल पे कोई इम्पैक्ट आता है तो किसी को पता ही नहीं क्या करना है। तो मेरे ख्याल में ये चीज चलती रहेगी, और बाय द टाइम अगर हम बेबी स्टेप्स भी ले रहे हैं, तो अगर मैं देखता हूँ कि हम बेबी स्टेप्स भी ले रहे हैं तो अच्छी ही ले रहे हैं, जो मेरे रिलेटिव है। उसका रीजन है वी आर ए थर्ड वर्ल्ड नेशन। हम जब तक हमारे ऊपर पड़ती नहीं है हम सीखते नहीं है, बल्कि दूसरों की गलती रियलाइज करेंगे कि यार हम कितनी चीजों को पीछे अपना लॉस कर रहे हैं अपना। तो आई थिंक अभी भी जो साइबर पॉलिसी भी आ गई है, ये भी बड़ा अच्छा स्टेप है। सही। अली इमरान साहब, आप कुछ शेयर करने चाहेंगे अपने व्यूज इसके ऊपर, प्लीज? एग्जैक्टली, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें ये वाला। मैं सवाल ये था हमारे ऑडियंस में से एक का कि चूंकि टेलको और फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा मैच्योर हैं, ज़्यादा स्टेबल हैं हमारे कंट्रीज के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, तो ये क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि ये इनिशिएटिव लें एक ओवर आर्चिंग साइबर सिक्योरिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट करने में, जो कि सिर्फ इनके ऊपर लागू ना हो, बल्कि जैसे हम बाकी दूसरे बिजनेसेस की हम बात कर रहे थे, हमने बात की करीम की और हमने फूड पांडा, इनकी बात की, इन सब के ऊपर जो है लागू हो और अगेन फ्लेक्सिबल हो, जो कि जैसे शुरू में जवाद खालिद साहब ने शुरू में बात की थी कि हर बैंक जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता सीसो रखना, उनकी फाइनेंशियल कंपल्शंस हैं। तो अगेन एक ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क हो जो कि फ्लेक्सिबल हो, हर एक के ऊपर लागू हो सके और
यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमें हेल्प कर सके? देखिए ये ना गवर्नमेंट लेवल पे रियलाइजेशन की जरूरत है कि जो मेच्योर सेक्टर्स हैं उनसे इनपुट लें, ठीक है, उनको ऑन बोर्ड करें, ठीक है, जब भी इस तरह की कोई रेगुलेशन लेके आनी है, ठीक है, क्योंकि देखें वो सेक्टर्स खुद से इनिशिएटिव नहीं ले सकते, उनकी अपनी डोमेन है, ठीक है, वो अपनी डोमेन में से निकल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि यार FIA इनिशिएटिव ले रहा है कि ये साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कोई होना चाहिए, तो FIA इज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, उसका काम ही नहीं है उससे, ठीक है, लोग अगर वो करेगा तो लोग कहेंगे भाई आपको क्या है, ठीक है। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम है, उसको चाहिए कि जो मेच्योर सेक्टर्स हैं ऑलरेडी, जैसे स्टेट बैंक कंपैरेटिवली मेच्योर है, वो रेगुलेट कर रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री को, ठीक है, और उसकी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑलरेडी रेगुलेशंस हैं, उनके कंप्लायंस चेक्स करता है, तो वो बेसिकली उसको उनको ऑन बोर्ड करें, ठीक है, और उनको अपने साथ ले, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जवाद साहब बता रहे हैं कि जैसे जवाब साहब उसको चेयर भी कर रहे हैं, जो साइबर सिक्योरिटी फोरम है उसका, पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन का, ऐसे जितने भी फोरम्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड किया जाए, ठीक है, फॉर्मली ऑन बोर्ड किया जाए, और मीटिंग्स कॉल की जाए, और उसके अंदर ये लोग जिनको नॉमिनेट करें वो लोग जाके मीटिंग्स अटेंड करें, फिर एक उस पर एक फ्रेमवर्क बनाया जाए कि जी किस तरह से काम होगा और किस तरह से इन चीज़ों को, या फिर एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को हायर करें, ठीक है, और इनको भी इनवाइट करें, जो ऑलरेडी मेच्योर सेक्टर्स हैं इनको भी इनवाइट करें। तो ये है कि आप खुद ही बना लें घर पे, और फिर एक दिन उसको कंसल्टेशन ड्राफ्ट दे दें, फिर लोग उसके ऊपर काफ़ी सारी बातें करें, फिर आप उसको मतलब बिल्कुल ही रीवैम्प कर दें, दैट्स डिफरेंट। काफ़ी लोग मुझसे डिसएग्री कर रहे हैं मेरे सीजो वाले रोल के ऊपर, कोई राज साहब भी। आई थिंक वो एक ऐसी डिस्कशन है जो Anyways, कि कभी मैं उस पे एक बात करता जाऊँ, लेकिन ये एक बहुत लंबी बहस है, ठीक है। और मेरी जो मेरे एक्सपीरियंस का क्रक्स है ना, वो जो मैं बता रहा था, ठीक है। अब आप लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, ठीक है, हाउ इट्स वर्किंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, और हाउ इट्स वर्किंग फॉर यू, ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। अगर आपके लिए वो चल रहा है, ठीक है, एक बंदा डिफाइन करेगा पॉलिसी, दूसरा इसको इम्प्लीमेंट करेगा, तीसरा उसको रिव्यू करेगा, चौथा चेक करेगा, we do not have that much resources in Pakistan, ठीक है जी। अगर आपके पास कहीं और ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे 4 रिसोर्सेज हैं एक ही काम को करने के लिए, ठीक है, और फिर उनकी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज तो आप वो कर सकते हैं। हम तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हमें जब लोग कहते हैं कि ये करना है तो हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो जहाँ पे आप एक चीज़ों नहीं रख रहे और उसको वो नहीं कर रहे, वहाँ पे हमें अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें अपने मुताबिक चलानी पड़ती हैं। तो चीज़ों का रोल बहुत बड़ा है, और सिर्फ IT नहीं है यार, कुछ भी नहीं बड़ा, ठीक है, कुछ भी नहीं है, IT ही है, ठीक है। अब आपको स्पेसिफिकली ये कह दूं, ठीक है, अब मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, बुक्स के अंदर बहुत सी जगहों पे जाता है, रोल बहुत फैला हुआ है, प्रैक्टिकली सिर्फ IT है जहाँ से आपको खतरा है सबसे ज्यादा, ठीक है। बाकी चीजों के लिए लोग बैठे हुए हैं, आपके हेड ऑफ सिक्योरिटीज बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी फिजिकल सिक्योरिटीज को इंश्योर कर रहे हैं, CCTV कैमरा लगे, वो आपके अंडर आ ही नहीं रहे, वो एरियाज आ ही नहीं रहे। तो जिन चीजों को आपने देखा है जो मेजर रिस्क एरिया है, वो साइबर सिक्योरिटी है, वो IT सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो आपका रोल बहुत बड़ा है, और आप सिर्फ इस रोल को नहीं देख रहे, इट्स ऑल बुकिश मैं इतना कहूँगा बस, ठीक है। बुक्स मैंने बहुत पढ़ी हैं और सब चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन मसला ये है कि ये आस्ता आस्ता चीज़ें मेच्योर हो रही हैं। ये सोशल साइंस है बेसिकली, जो साइंस बनती जा रही है, ठीक है, इट्स ऑल सोशल साइंस। मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं सीखूंगा ना, तो आई विल राइट अ बुक, ठीक है। तो मेरी बुक ये कहती है कि इट वर्क्स लाइक दिस, ठीक है जी। तो बाकी जो जिस आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, तो आप उसको डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट। I think you're right in the sense के स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है इसकी, कहीं पे आप जाएं कि आप कह दें हर शख्स को अपने हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है। और अगेन वही जो बात हम शुरू में कर रहे थे कि हम ये जो सारी डिस्कशन है हम इसको आइसोलेशन में नहीं कंडक्ट कर सकते। जब हम इसको आइसोलेशन में करते हैं तो वो अगेन ये येस और नो, 0 और 1 वाली बात हो जाती है। बाइनरीज में हम जब तक ऑपरेट करते रहेंगे, आई मीन कोई कंस्ट्रक्टिव हम चीज नहीं क्रिएट कर सकते। तो अगेन आपको जैसे जवाद खालिद साहब ने आइडेंटिफाई किया कि कुछ सीसोस जो हैं वो CROs को रिपोर्ट करें, एंड इट मेक सेंस क्योंकि एज आई रिकॉल आई थिंक G20 की कुछ जो उनकी जो बेसल कमेटी है वो कंसिडर करती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को एज एन ऑपरेशनल रिस्क. So it makes sense that at certain points CISOs would be reporting to CROs in certain cases. So again,
you cannot fixate it. It can be an untiring, endless discussion. और again, organizations अपने हिसाब से जो है, जो उनको फिट लगता है, जो उनके पास रिसोर्स हैं, जिन सर्कमस्टांसेस में वो ऑपरेट कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है वो अपनी बेस्ट चीजें जो है वो करते हैं. आई थिंक दैट्स अबाउट इट फ्रॉम आवर साइड. तौसीफ साहब, अगर लास्ट पॉइंट के ऊपर अगर आप कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज, एंड देन वील रैप अप द सेशन. It was, I think, the last comment. So maybe you can rephrase that question a little bit for me, because again, the जो discussion went idea widespread, okay. एक हमारा एक जो ऑडियंस में से आया था कि टेलको सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया जाए कि एक ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क बनाया जाए जो कि एप्लीकेबल हो, ना कि सिर्फ फाइनेंशियल और टेलको सेक्टर के ऊपर, तमाम सेक्टर्स के ऊपर एट लार्ज. जी, मैं इस पे देखें, ये जो बात हम हो रही है, ये बेसिकली सेक्टोरल रेगुलेशन की बात हो रही है, जिसकी एग्जांपल PCI DSS है, और जिसको रेगुलेट करता है क्या पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोई काउंसिल है, उसको रेगुलेट करती है. सो यस, दिस इज क्या कहते हैं, मतलब ये टेक्निकली इट इज पॉसिबल कि 2-3 इंडस्ट्रीज मिलें और वो एक रेगुलेशन क्रिएट करें, बट प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट विल नॉट बी पॉसिबल अंटिल देयर इज अ नीड. PCI DSS क्यों इवॉल्व हुआ था? आई थिंक जवाद एंड अली कैन मे बी कमेंट, बिकॉज मेरा बैंकिंग सोचना एक्सपीरियंस नहीं है, बट फ्रॉम माय व्यू पॉइंट इट वाज क्योंकि जब हमने कार्ड्स के ऊपर कस्टमर्स का ट्रस्ट क्रिएट करना था, सो वी ब्रॉट इन अ रेगुलेशन, वी ब्रॉट इन अ स्टैंडर्ड कि जिसके तहत अगर किसी ने कार्ड को ऑपरेट करवाना है और सिस्टम को प्रोसेस करना है डाटा को, तो दे नीड टू adhere to those basic security guidelines, and this was definitely to enhance customer trust. So if we have certain interest within the banking and telco industry or maybe digital industry, and we all agree that कि हमें overall customers को trust को बेहतर करने के लिए, ज़्यादा customers लाने के लिए ऐसा कोई regulation चाहिए, तो हो सकता है. But PCI DSS के अलावा कोई बहुत बड़ी examples नहीं है, इतनी बड़ी success किसी और standard को ऐसे नहीं मिली. So practicality of it is not that feasible. I think we are already set with lot of things. जो मैंने भी पहले भी जिक्र की कि आपका डाटा प्रोटेक्शन की रेगुलेशन है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, these are coming up. नेशनल स्टॉक एंड सर्ट की बातें बैंकिंग और टेलको सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो रही हैं. So a little bit from what Ali said, कि importance इस बात की है कि maybe we have some groom forums like GSSP. I think we have a CISO forum जिसमें जवाद and I am working together. So we have ISACA, ISSCare, and a lot of good bodies. So maybe if we can try to come to a table and talk to government agencies that maybe all of this cannot be done in closed rooms. They have to consult these expert bodies, and this is how we can use this holistic intelligence from different sectors of industry, from different professional bodies, and we can be more I will say professional in a regulation and all those things, so that they can be adopted by the masses. They are not just a regulation which is maybe placed at a very high holy place in our cabinets or something, but there people are really practicing it. So I think that's my take on it. Munib. Thank you so much everyone. It was a pleasure indeed कि आप लोगों ने अपने opinions share किए, क्योंकि ये चीज़ जो लोग पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं उनसे बेहतर इन चीज़ों के ऊपर हमें कोई गाइड नहीं कर सकता था, कोई हमें जो है वो बेहतर फीडबैक दे नहीं सकता था. और अगेन मैं वही दोबारा से जो है रीफ्रेश करूँगा, आइडिया हमारा इन तमाम वेबिनार्स का ये है कि एक जो है वो नए आइडियाज़ के ऊपर काम किया जाए, और जो हमारे एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, जो हमारे पेन पॉइंट्स हैं उनको उजागर किया जाए, और उन आइडियाज़ को कार्व आउट किया जाए जहां से हम कुछ कर सकते हैं, जहां पे हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन हो एक प्रॉब्लम की, चाहे वो सॉल्यूशंस हमने प्रोवाइड करने हो. तो थैंक यू सो मच जवाद साहब, अली इमरान साहब, तौसीफ साहब, फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड आवर ऑडियंसेस. It was a pleasure to have you in our webinar. We'll see you next time, inshallah.